آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ انسانی حقوق کمیشن نے تریپورہ کے واقعات کا لیا نوٹ، تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ میں ایمرجنسی کے دن آ گئے، کے ٹی آر کی ریاستی حکومت پر تنقید۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ کے پاس اسکائی وے کی تعمیر، عوام کی سہولت کی خاطر ریاستی حکومت کا فیصلہ۔ سیاحوں کے لیے خوشخبری، ناگرجنا سری سیلم کشتی رانی کا دوبارہ آغاز۔ اور تلنگانہ میں سردی نے دی دستک، متحدہ ضلع کریم نگر میں کوہر کے باعث گاڑی سواروں کو مشکلات۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ دبئی کے علاقے نائف میں ایک ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے ہوٹل میں دھواں بھر گیا، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کے باعث 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی دبئی سول ڈیفنس کی ٹیمیں 6 منٹ کے اندر مقام حادثے پر پہنچ گئی۔ متاثرہ افراد کی مدد کرتے ہوئے فوری طور پر انہیں وہاں سے بچانے اور آگ بجھانے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ دبئی میڈیا آفس نے ہفتے کو ایکس پر ایک پوسٹ میں خبر دی۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس نے مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ القدس اليوم ٹی وی چینل کے فلسطینی فوٹو جرنلسٹ بلال رجب غزہ کے شہر کے مشرق میں فراس مارکیٹ کے قریب شہریوں کے ایک اجتماع کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق جمعہ 1 نومبر کو رجب کی موت سے غزہ پٹی میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے والے صحافیوں کی تعداد بڑھ کر 183 تک پہنچ گئی۔ میڈیا آفس نے فلسطینی صحافیوں کو وحشیانہ طور پر نشانہ بنانے، قتل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اس گھناؤنے جرم کا مکمل طور پر جوابدہ ٹھہرایا۔ اسرائیل کے علاقے شارون میں ایک میزائل حملے میں 19 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ہفتے کو یہ بات بتائی۔ فوج کے مطابق لبنان سے 3 میزائل داغے گئے جو اسرائیل کے مرکزی علاقے میں گرے۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 4 کی حالت مستحکم ہے اور تمام 19 افراد کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس میگن ڈیوڈ ایڈیوم نے پہلے ہی کہا تھا کہ مرکزی شہر میں ہونے والے حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک 20 سالہ نوجوان بھی شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وزارت خارجہ نے 1 نومبر کو ایک سینئر کینیڈین سفارتکار کو طلب کیا تاکہ ہندوستانی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف کینیڈا کے ڈپٹی منسٹر ڈیوڈ موریسن کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر باضابطہ احتجاج درج کروایا جائے۔ یہ الزامات 29 اکتوبر 2024 کو اوٹاوا میں عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی کے دوران سامنے آئے، جس میں موریسن نے شاہ کے بارے میں بے بنیاد اور نامعقول تبصرے کیے۔ کینیڈین ہائی کمیشن کے نمائندے کو دیے گئے سفارتی نوٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس نوٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت ڈپٹی منسٹر ڈیوڈ موریسن کی جانب سے کمیٹی کے سامنے بھارتی وزیر داخلہ کے بارے میں کیے گئے بے بنیاد اور نامعقول تبصروں پر سخت ترین احتجاج کرتی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہفتے کو کانپور میں ایڈوانسڈ ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ انڈیا لمیٹڈ کی یونٹ فیلڈ گن فیکٹری کا دورہ کیا اور اہم دفاعی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ راجناتھ سنگھ نے اہم مقامی دفاعی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے کارخانے کے ہیٹ ٹریٹمنٹ اور نئی اسمبلی شاپ سمیت اہم سہولیات کا معائنہ کیا۔
राज्यसभा के साबिक रुकन और बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने मगरबी बंगाल में मुसलमानों को निशाना बनाने वाली अपनी इश्तियालंगेज तकरीर से तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए इफ्तिताही रुकनीत मुहिम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, ये रिमार्क्स तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा हुमायूं कबीर के बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान के जवाब में कहे। मिथुन चक्रवर्ती ने कबीर पर मगरबी बंगाल के हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया। इस तकरीब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मुझे तवक्को थी कि वज़ीर आला ममता बनर्जी आएंगी और हुमायूं कबीर के बारे में बयान देंगी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब मैं कह रहा हूँ हम उन्हें काट कर ज़मीन के अंदर दफन कर देंगे। उनके तबसरों में बराह रास्त धमकी भी शामिल थी, जैसे कि अगर आप हमारे दरख्तों से एक फल काटेंगे तो हम आपके 4 फल काट देंगे। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो आगे त्रिपुरा इंसानी हकूक़ कमीशन ने रियासत में ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम के 3 हालिया वाक़यात का अज़ख़ुद नोट लिया है। तीनों मुक़द्दमात में शदीद तशद्दुद, मेडिकल कॉलेज में मुबैना रैगिंग और एक खातून को एक नौजवान से शादी करने पर मजबूर करना और खातून की बरहना परेड शामिल है। एक ओहदेदार ने बताया कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के साबिक़ जज सोपन चंद्र दास की सरबराही में कमीशन ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि उन तीनों वाक़यात की इंक्वायरी करें और 2 से 3 हफ्ते में हर मामले पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने हफ्ते को हुक्काम को हिदायत दी कि वक्फ अराजी के मसाइल पर किसानों को भेजे गए तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस ले। चीफ मिनिस्टर की हिदायत एक आला सतही मीटिंग के बाद दी गई, जिसमें महकमे माल, महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड के सीनियर ओहदेदारान शामिल थे। उन्होंने बाज़ ओहदेदारों की हालिया कार्रवाइयों पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया और दावा किया कि JDS और BJP रियासत में सियासी फ़ायदे और मुमकिना तौर पर अमन को ख़राब करने के लिए वक्फ मसले को इस्तेमाल कर रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने आवाम से किसी भी गलत मालूमात को नज़रअंदाज करने की अपील की और अहदेदारों से मुतालबा किया कि इस मामले को हसास तरीके से निपटा जाए। ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ಸಂಡೂರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕಂತ ಸೂಚನೆನ ವಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ। ನಿನ್ನೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ರೈತರದು ಆತಂಕ ಬೀಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭಯ ಬೀಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೂ ಇಲ್ಲ। ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾರು ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸೂಚನೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के 2 दिन के अंदर हमने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की। राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत हमने 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत शुरू की। RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू की गई। साल ख़त्म होने से पहले हमने इसे नाफिज किया। 22 लाख किसानों के लिए मुल्क में सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ी की गई। हमने सिर्फ 25 दिनों में 18,000 करोड़ रुपए की मुफ्त बरक़ी की सहूलत फराहम की। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में घरेलू पकवान गैस की कीमतें ज़्यादा है। तेलंगाना में हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर स्कीम से अब तक 43 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों को इंतजामी मंजूरी दे दी है। दूसरे मरहले के तहत शहर के 76.4 किलोमीटर तक मेट्रो रेल तामीर करने की इजाज़त दे दी गई। इस सिलसिले में जियो नंबर 196 भी जारी कर दिया गया। मरकज़ और रियासती हुकूमत की शराकत दारी से मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीराती कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर मजमूई तौर पर 24,269 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होंगे, जिनमें रियासती हुकूमत का हिस्सा 7,313 करोड़ रुपए होगा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने कहा कि 10 साल तक आज़ादी से सांस लेने वाले तेलंगाना में एक मरतबा फिर इमरजेंसी के दिन आ गए हैं। रियासत के कई अजला में पुलिस एक्ट के निफाज की इत्तलात पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तारक रामा राव ने रियासती हुकूमत के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जमहूरी तेलंगाना में सुबह होते ही पुलिस के बूटों की आवाज़ें सुनने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हुक्मरानी की गलत पॉलिसियों और फैसलों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है, अलावाज़िन खिदमात से भी मुअत्तल किया जा रहा है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में मरीज के खून का नमूना लिए बगैर मरीज के रिश्तेदारों को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थमा देने का अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रामू नामी मरीज को कै और दस्त पर बांसवाड़ा के एरिया हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। मरीज और उसके रिश्तेदार उस वक्त हैरान रह गए जब मरीज के खून का नमूना लिए बगैर खून की रिपोर्ट हवाले कर दी गई। मरीज के रिश्तेदारों ने इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से इस वाक़े की शिकायत करते हुए इंसाफ की ख्वाहिश की गई। तेलंगाना हुकूमत ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन के पास नया स्काईवे तामीर करने का फैसला किया है। बताया गया है कि इस मेट्रो स्टेशन पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में मुसाफिरीन की आमद रफ्त रहती है, जिसकी वजह से स्टेशन से नीचे उतरकर सड़क अबूर करना पड़ता है। यहाँ के मुसाफिरीन को सड़क अबूर किए बगैर स्काईवे से सड़क की दूसरी जानिब पहुँचने के लिए नया स्काईवे तामीर करने का फैसला किया गया है। बताया गया है कि मेट्रो स्टेशन के पास दोनों तरफ L&T मेट्रो के लिए मख्तस अराजियात हैं। इसे मरबूत करते हुए स्काईवे तामीर किया जाएगा। सूर्यापेट जिले में पेश आए दिलकरा सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कोदा टाउन के कटकम्मा गोड़म इलाके में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह पर 2 बसों का तसादुम हो गया। जराये के मुताबिक हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली TSRTC बस के आज सुबह सड़क के किनारे ठहरी एक खानगी बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तेलंगाना के जिले निर्मल में ATM से रकम की चोरी की कोशिश की इत्तला पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के निर्मल टाउन में केनरा बैंक के मैनेजर ने डायल 100 पर फोन करते हुए इत्तला दी कि नामालूम शख्स ATM से रकम की चोरी की कोशिश कर रहा है। इस इत्तला के साथ ही पुलिस जो पेट्रोलिंग पर थी, उन्होंने फौरी ATM सेंटर पहुंचकर फौरी तौर पर CCTV फुटेज का मुआयना करने के बाद करीबी इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त गंगाधर के तौर पर की गई है। नागार्जुन सागर डैम से श्री सलेम डैम तक कश्ती रानी का दोबारा आगाज हो गया। महकमे सयाहत की जानिब से कश्ती रानी का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। बताया गया है कि गुज़श्ता 5 साल से नागार्जुन सागर तक श्री सैलम कश्ती रानी शुरू करने का मंसूबा बनाया गया था। ताहम नागार्जुन सागर में मुनासिब मकदार में पानी न होने और कोरोना की वबा की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी हो गया था। फिलवक्त दोनों डैम्स में पानी की काफ़ी मकदार पाई जाती है, जिसके पेश नज़र कश्ती रानी का आगाज़ कर दिया गया।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने हफ्ते को ऐलान किया कि कार्तिका के महीने के दौरान अकीदतमंदों की सफ़र की सहूलत के लिए खुसूसी बस सर्विसेज जल्द फराहम की जाएंगी। ये खुसूसी बसें हैदराबाद से कई मजहबी मकामात बशमूल श्रीसैलम, वेमलवाड़ा, धर्मपुरी के दरमियान आसान ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी। और अब मौसम। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। रियासत के कई इलाकों में सुबह के औकात में कई घंटों तक कोहर देखा गया। हफ्ता 2 नवंबर की सुबह के अवलिन सातों में रियासत के कई हिस्सों में दर्ज हरारत में कमी और सर्दी में इजाफा हुआ। कई मकामात खासतौर पर मुत्तहदा ज़िले करीमनगर में बेशतर इलाकों में कोहर देखी गई। पिद्दापल्ली, सुल्तानाबाद में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को सड़क नज़र नहीं आ रही थी, जिससे उन्हें गाड़ी चलाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जगतियाल ज़िले में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है। कोहर के बाइस आवाम और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके आहिस्ता गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें सामने से आने वाली गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। इंसानी हकूक कमीशन ने त्रिपुरा के वाकयात का लिया नोट, तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तेलंगाना में इमरजेंसी के दिन आ गए, केटीआर की रियासती हुकूमत पर तनकीद। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के पास स्काईवे की तामीर, अवाम की सहूलत की खातिर रियासती हुकूमत का फैसला। सयाहों के लिए खुशखबरी, नागार्जुना श्रीसैलम कश्ती रानी का दोबारा आगाज। और तेलंगाना में सर्दी ने दी दस्तक, मुत्तहदा जिले करीमनगर में कोहर के बायस गाड़ी सवारों को मुश्किलात। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।